See, today we are starting with forfeiting. Now, what do you mean by that? Forfeiting is similar to international factoring. Now, we studied there were four parties involved in international factoring, right? So, forfeiting means, see, the term forfeiting is originated from Old French word forfeit, which means forfeiting or surrendering of right. That means if you forgo your right, if you surrender your right, if you are ready to leave back your right, that is known as forfeiting. Basically that is known as forfeit, to forfeit. Okay. Now forfeiting is a mechanism by which right for export receivables of an exporter, okay, it is always, remember, it is always related to export and import transactions. It is not anyway related to purchase and sales transactions. Export and import means when you export something, when you sell something to the outside country, okay, across border transactions you can say. Okay, when it is a mechanism by which the right for export receivable of an exporter is purchased by financial intermediary is known as forfeitor without recourse to him. Now whenever there is a forfeiting, in forfeiting there is always one method, only single method, without recourse. There is no point of recourse to the client. There is always without recourse. हमेशा इसमें क्या होता है, without recourse वाला मेथड अप्लाई होता है. ठीक है, मतलब जिसमें क्लाइंट को बैड डेट्स बियर करने का बर्डन नहीं लेना होता. Client does not take any burden of taking future bad dates. Okay. Forfeiting is a mechanism of financing exports. That means whenever I am exporting anything, any goods to any other country, in a company that is in another country, and it is made available by discount export receivable. Of course, वो जो forfeiter है, वो आपको discounting made available by discounting export receivable means आपको ना मतलब आपसे सारा एक्सपोर्ट के बिल्स ले लेंगे और आपको डिस्काउंट करके अमाउंट पूरा एडवांस दे देंगे. जैसे बिल्स डिस्काउंटिंग में कैसे होता है, अपन बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं ये बिल आप मुझसे खरीद लो और इसका एडवांस मुझे अभी दे दो, बेशक आप डिस्काउंट काट लो. तो उसे हम बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटिंग कहते हैं. तो ये वही बोल रहा है, अवेलेबल बाय डिस्काउंटिंग एक्सपोर्ट रिसीवेबल मीन्स ऑल द रिसीवेबल्स आर सोल्ड टू फॉरफेटर and he will give you advance amount. The bill may stand for after 3 months, after 4 months, but he will give you money right now, today itself. All the bills will be discounted. Discounted means after cutting the amount of discount, after deducting the amount of discount, he will pay back you all the amount. Okay, and that amount is known as advance money, advance earned. Okay. Second point क्या लिखा हुआ है देखिए, evidenced by bills of exchange or promissory notes. That means you have to pay them something. Now because you are receiving from a forfeiter, you are receiving advance, no? So against that, what you are giving him, you will have to give all the bills of exchange to him, all the bills of export to him. Okay, without recourse to the seller. Now exporter never takes any burden of the future bad dates, of the future losses that may occur to the forfeiter because of the importers. Any importer, because of any importer, if any loss is occurring to a forfeiter, then no burden will be taken by exporter. Seller means exporter. That is known as without recourse. हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में डिटेल में, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स क्या होता है. ऑपरेटेड ऑन अ फिक्स्ड रेट बेसिस. जो डिस्काउंट होता है ना वो फिक्स्ड रेट होता है, मतलब 10% डिस्काउंट विल बी फिक्स्ड, 20% डिस्काउंट विल बी फिक्स्ड. सो दैट वे फिक्स्ड रेट बेसिस पे ये ऑपरेट किया जाता है. अब आप बोलोगे मैम इसमें फर्क क्या है, अगर फॉरफेटिंग और इंटरनेशनल फैक्टरिंग में कोई फर्क ही नहीं है तो इन्हें दो अलग कंसेप्ट्स में क्यों दिया हुआ है. क्योंकि
हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है फैक्टरिंग में 75 to 80% तक हम लोग को, देखो यहाँ पे कहीं दिया हुआ है पॉइंट कि आपको याद होगा आई सपोज, फैक्टरिंग में हमेशा 75 to 80% कैश को एडवांस किया जाता है। हमने पढ़ा था ना, ये देखिए 75 to 85% इनवॉइसेस जो रिसीवेबल्स होते हैं वो फैक्टर्ड होते हैं, मतलब एडवांसेस हमको कितने मिलते हैं, अप टू 80%। लेकिन ये फॉरफिटिंग में आपको 100% अवेलेबल अप टू 100% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जितनी आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, मतलब जितने के आपके एक्सपोर्ट बिल्स हैं, आप दो पार्टीज के बीच में कितने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, उसका 100% आपको दिया जा सकता है, मतलब इट इज अवेलेबल अप टू 100%। दिस इज द डिफरेंस। देखो, forfeit is derived from a French word of forfeit which means to surrender of rights। ये rights होना चाहिए, fights नहीं होना चाहिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, दिस मीन्स सरेंडर ऑफ राइट्स। ओके, कौन से राइट्स? अभी मैं एक्सपोर्टर हूँ, अभी एक्सपोर्टर को क्या राइट होता है कि जो भी मेरे हाथ में ये एक्सपोर्ट बिल्स हैं, ओके, जो मेरे हाथ में ये बिल्स हैं, उनको मैं ड्यू डेट तक कस्टमर से पैसा पूरा वसूल करना है। ठीक है, जो भी मेरा कस्टमर है, यूएस का कस्टमर है, यूके का कस्टमर है, ऑस्ट्रेलिया का कस्टमर है, कहीं का भी कस्टमर है, वो पूरा का पूरा पेमेंट किसको करेगा? एक्सपोर्टर को करेगा ना। लेकिन एक्सपोर्टर अपने सारे राइट्स को छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है। क्यों सरेंडर करता है? क्योंकि उसको फ्यूचर तक वेट ना करना पड़े। फ्यूचर में 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद या 5 मंथ्स के बाद पैसा मिलेगा ना आपको। ठीक है, जो कैश मिलनी है, जो फंड्स मिलने हैं, वो आपको फ्यूचर में मिलने हैं, आपको फ्यूचर तक वेट नहीं करना है। इसीलिए आपने फॉरफिटर को अपॉइंट किया एंड ही विल परचेज ऑल योर एक्सपोर्ट बिल्स, ओके, एंड विल पे यू एडवांस, एंड दैट एडवांस कैन बी पेड अप टू 100%। Now it is the duty of forfeiter to collect all the money from your customers according to their due dates. देखो, forfeiting is a mechanism by which right for exporter receivables of an export receivables of an exporter is purchased by financial intermediary. Okay, who is financial intermediary here? Known as forfeiter. Always remember, this forfeiting is without recourse. Without recourse to him means without recourse to the client. Okay, it is different from international factoring. Don't misunderstand, this is not international factoring. It is similar to that, but it is not same exactly same to international factoring. Okay, it is different from international factoring in as much as it deals with the receivables relating to deferred payment exports, while factoring deals with short-term receivables. The second point that I was telling you, the difference between factoring and forfeiting, international factoring is dealing with only short-term receivables, 3 months bill, 2 months bill. There are so many bills which are outstanding for just 6 months, 1 year, or 1 month, 2 months, that way, or maybe 15 days, as short as 15 days. But international factoring is not for 15 days. It is for deferred payments, deferred long term, 6 months, 8 months. Are you getting my example? So international factoring deals with the receivables relating to the long term payments, whereas factoring deals with short term payments. Okay. Now factoring. See, exporter under forfeiting, सॉरी मैंने फैक्टरिंग बोल दिया गलती से, forfeiting, export under forfeiting surrender his rights for claiming payment for the services rendered or goods supplied to the importer in the favor of forfeiter। यानी कि वो बोल रहा है, अगर समझो मैं एक्सपोर्टर हूँ और आप इम्पोर्टर हैं, अब मुझे हक है, मुझे पूरा राइट है कि मैं आपको बोल सकूं कि ड्यू डेट तक मुझे पेमेंट करना, लेकिन ये पेमेंट अब मुझे नहीं मिलेगी, ये मैंने राइट सरेंडर कर दिया, ये मेरा राइट था, बट मैंने सरेंडर कर दिया। किसके ऊपर सरेंडर कर दिया? फॉरफिटर के ऊपर, इन द फेवर ऑफ फॉरफिटर। मतलब
अब आप इम्पोर्टर को क्या कहेंगे कि आप जो पेमेंट करेंगे ना वो किसके फेवर में करेंगे, फॉरफेटर के। जो चेक बनाएंगे वो किसके फेवर में बनाएंगे, फॉरफेटर के, ना कि मेरे फेवर में। आई बात समझ में, सबको समझ आ रहा है? तो आगे बढ़ू, इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? यस? नहीं मैम। हेलो, समझ आ रहा है तुम लोग को? आवाज दो नहीं बेटा। मैम, वापस रिपीट करो ना। क्या क्या रिपीट करूं? वही वाली फर्स्ट वाली लाइन। फर्स्ट हाँ। वाली लाइन ना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, समझो मैं एक्सपोर्टर हूँ और आप इम्पोर्टर हैं, ठीक है। आप मुझसे गुड्स खरीद रहे हैं, आप यूएस के कस्टमर है और मैं इंडिया की एक्सपोर्टर हूँ। अब मैंने किसी और कंट्री में अगर एक्सपोर्ट किए गुड्स, तो जिस दिन ड्यू डेट आएगा, समझो 7 मंथ्स के बाद ड्यू डेट आ रहा है, 7 मंथ्स, लास्ट इंस्टॉलमेंट मुझे कब मिलनी है, 7th मंथ के बाद। तो 7 मंथ्स तक मैंने वेट नहीं किया, सारे के सारे एक्सपोर्ट बिल्स किसको बेच दिए, फॉरफेटर को। अब जो मेरे राइट्स थे, राइट्स मतलब मेरा मेरा राइट था ना वो, कि मैं आपसे 7 मंथ के बाद जितनी जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं ड्यू डेट पर, वो मैं आपसे कलेक्ट करूं। मतलब पूरा का पूरा पेमेंट किसको मिलना था, एक्सपोर्टर को मिलना था, मुझे। आप मुझे पे करने वाले थे। लेकिन अभी ये राइट मेरा नहीं है, ये राइट अब किसका हो गया, फॉरफेटर का। क्यों? क्योंकि मैंने सारे बिल्स फॉरफेटर को बेच दिए हैं और उसने मुझे ऑलरेडी एडवांस कर दिया है, ऑलरेडी मुझे एडवांस दे चुका है वो फॉरफेटर। तो अब ये पूरा हक, पूरा राइट किसका है, पूरा पेमेंट रिसीव करने का जो इम्पोर्टर पे करेगा, फॉरफिटर का। यस, फॉरफेटर का। ये फॉरफेटर का राइट है कि पूरा का पूरा पेमेंट आपसे रिसीव करेगा। आप मतलब इम्पोर्टर, आपने सारा पेमेंट किसके फेवर में करना है, फेवर मतलब किसके नाम पे करना है, फॉरफेटर के, ना कि एक्सपोर्टर के। सेम चीज है वो, इंटरनेशनल फैक्टरिंग नहीं सीखा था हमने, ये वो सेम चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस ये फॉरफेटिंग है, फॉरफेटिंग में लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब जो पेमेंट होती है ना वो डेफर्ड पेमेंट्स होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक जो फॉरफेटर होता है, ऑफ कोर्स बैंक्स बहुत बहुत सारी क्या, लगभग सारी बैंक्स अभी ये सर्विसेज देती हैं आपको फॉरफेटर की, मतलब वो फॉरफेटर बनती है आपके लिए। ये ना स्लाइड में थोड़ी सी मैंने कहीं और से लिए हुए हैं ये सारे पिक्स, तो ना इसमें ना फॉरफेटर की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आप प्लीज ध्यान देना, फॉरफेटर की स्पेलिंग ये है, ओके। बैंक जो कि फॉरफेटर बनता है, जो प्रोवाइड करता है फॉरफेटिंग सर्विसेज, अज्यूम्स डिफॉल्ट रिस्क पजेस्ड बाय द इंपोर्टर। वो ये बोल रहे हैं कि जो भी अगर फ्यूचर में इंपोर्टर पे नहीं कर पाएगा, बैड डेट्स हो जाएंगे। डिफॉल्ट रिस्क का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स। डिफॉल्ट रिस्क मतलब अगर वो नहीं पे कर रहा है, उसको पे करना चाहिए इंपोर्टर को, लेकिन इफ ही इज नॉट पेइंग और इफ ही इज नॉट एबल टू पे, समझ आ रहा है, उसका बिजनेस नुकसान में जा रहा है, ही इज नॉट रेडी टू पे, ही इज नॉट लाइबल टू, आई मीन ही इज नॉट एबल टू पे, एंड therefore there is my default risk that arises to me. The default risk that arises to me has to be borne by forfeitor only. The client will not take any possession of any burden of the default risk. इसको बोलते हैं विदाउट रिकोर्स, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, बस इसको उसने अपने तरीके से सेंटेंस को चेंज करके क्लियर किया। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? फॉरफेटर के सर पे होता है कि वो डिफॉल्ट रिस्क को मैनेज करे, वो क्लाइंट के सर पे नहीं डाल सकता डिफॉल्ट, पूरा का पूरा लॉस क्लाइंट के सर पे नहीं डाल सकते। तो कौन उठाता है ये पूरा नुकसान, फॉरफेट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़े। देखो, क्रेडिट सेल गेट्स कन्वर्टेड एज कैश सेल्स। अब देखो, एक्सपोर्टर, मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैंने तो आपको गुड्स जब भी एक्सपोर्ट किए थे, ये बात पे एक्सपोर्ट किया था ना, ये कंडीशन थी ना, आपने मुझे कंडीशन क्या डाली थी कि मैंने 6 मंथ्स में पेमेंट करना है, मैंने 3 मंथ्स में पेमेंट करना है, मैंने 8 मंथ्स में पेमेंट करना है। तो मेरा तो 8 मंथ्स के लिए कैश ब्लॉक हो जाएगा ना, क्रेडिट सेल्स हो जाएगी मेरी। लेकिन 8 मंथ्स के लिए मैं रुकना नहीं चाहती, 3, 4, 5 मंथ्स के लिए मैं रुकना नहीं चाहती, तो मैंने क्या किया,
क्रेडिट सेल्स को कैश सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? फॉरफेटर अपॉइंट करके। अब फॉरफेटर तो सारे मुझसे बिल्स खरीदेगा, तो यही शर्त पे खरीदेगा ना कि मैंने तो यही शर्त पे बेचने हैं सारे बिल्स को कि मुझे अभी का भी उसकी पेमेंट चाहिए, एडवांस कैश सेल्स। तो सारे क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, फॉरफिटिंग इज एन अरेंजमेंट विदाउट रिकोर्स टू द एक्सपोर्टर। मतलब इसमें कोई डिफॉल्ट रिस्क एक्सपोर्टर उठाता नहीं है, वो सेम पॉइंट उसने रिपीट कर ली है। ऑपरेटेड ऑन फिक्स्ड रेट बेसिस, मतलब डिस्काउंट जो होता है ना, डिस्काउंट जो काटा जाता है, मतलब आपको समझो $30,000। डॉलर्स वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि फॉरफिटिंग जो होता है ना वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रांजैक्शंस का होता है। मतलब किसी और कंट्री में आप गुड्स को बेच रहे हैं, तो समझो आपने यूएस में गुड्स को एक्सपोर्ट किया, देयरफॉर वहां पे जो डॉलर, वहां पे जो करेंसी चलती है उस हिसाब से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो $30,000 के आपने गुड्स बेचे, ठीक है, पेमेंट मिलनी है आपको 4 मंथ्स के बाद। अभी $1 का रेट आज के दिन चल रहा है 70 रुपीज, ठीक है। अब 4 मंथ्स के बाद कितना होगा वो पता नहीं, लेकिन कम भी हो सकता है, तो मेरा नुकसान नहीं हो। देखो कम हो गया रेट तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना, अगर मैं इम्पोर्टर से 4 महीने के बाद पैसा ले रही हूँ तो। अगर रेट कम हो गया तो नुकसान, बढ़ेगा तो प्रॉफिट, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना है 4 मंथ्स तक रुक कर, क्या पता करेंसी रेट, एक्सचेंज रेट कम हो जाए और मेरा नुकसान हो जाए। नहीं, मुझे ये नुकसान बेयर नहीं करना। अगर हुआ नुकसान तो पता नहीं, नुकसान भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट आई डोंट वांट टू बेयर एनी लॉस। ओके, तो मैंने क्या किया, सारे के सारे बिल्स है ना फॉरफिटर को बेच दिए आज ही। आज का रेट क्या है? $1.70। $1.70। तो मैंने कितने के गुड्स बेचे हैं? $30,000। मैंने गुड्स की वैल्यू, मेरे गुड्स की वैल्यू क्या थी? $30,000 के गुड्स बेचे हैं मैंने। अब $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज है, तो $30,000 कितने में पड़ेंगे आपको? तो $30,000 इंटू 70 करिए, कितना आ रहा है? 21 lakhs आ रहा है। 3 7 21 आ रहा है कि नहीं? यस। $30,000 को आप ₹70 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई तो समझा आपने मैंने कैसे किया? तो अब वो 70 रुपीज का जो $1 का रेट था, उसको आपने $30,000 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपका टोटल पेमेंट आपको कितनी रिसीव करनी है? 21 lakhs। आप 21 lakhs को, हाँ 21 lakhs को आप 7-8 मंथ्स के लिए रुक नहीं सकते हैं ना, इसके लिए आपने फॉरफिटर को सारा अमाउंट, सारे बिल्स बेचकर 21 lakhs ले लिए। अब 21 lakhs के 21 lakhs आपको रेडी हो जाएगा वो पे करने के लिए फॉरफिटर, लेकिन 100% पे करेगा, लेकिन डिस्काउंट काट के। इसमें यही तो फर्क है, फॉरफिटिंग में आपको 100% वैल्यू मिलता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंस अवेलेबल इज अप टू 100% ऑफ वैल्यू अनलाइक इन फैक्टरिंग। मतलब फैक्टरिंग के जैसा नहीं है, अनलाइक मतलब फैक्टरिंग के जैसा नहीं है। इसमें फैक्टरिंग में क्या होता है, 70 to 80% आपको पेमेंट मिलता है मैक्सिमम, उसमें से भी डिस्काउंट काट के। लेकिन इसमें आपको 100% एक साथ ऑन द स्पॉट सारा का सारा बिल का पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन डिस्काउंट काट के। तो जो डिस्काउंट का रेट होता है ना, समझो अभी 21 lakhs आपको बैंक पे करेगी, बैंक मतलब फॉरफिटर। तो अगर आपको फॉरफिटर पे कर रहा है 100%, 21 lakhs का 100% 21 lakhs होते हैं, तो 21 lakhs में से सपोज 15% फिक्स्ड रेट बेसिस पे उनका डिस्काउंट है 15%। तो 21 lakhs का 15% जितना भी होता है, वो अमाउंट आपका काट के आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। आया समझ में? हमारी कंट्री में ये 1992 में आया था, क्या? फॉरफिटिंग का मेथड, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ फॉरफिटिंग, देखो इसमें मैम हाँ जी फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? बताया ना मैंने बेटा, इन दोनों में डिफरेंस है ना, ये है 100%। देखो फॉरफिटिंग में ना हमेशा 100% वैल्यू पे किया जाता है, 100%। और इंटरनेशनल फैक्टरिंग में क्या होता है,
100% कभी भी पे नहीं किया। फैक्टरिंग में कभी भी 100% नहीं पे करते हैं, फैक्टरिंग में अप टू 80% पे करते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन, मेजर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। और दूसरा डिफरेंस मैंने ये वाला बताया कि जो इंटरनेशनल फैक्टरिंग होता है ना, वो शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स में भी डील करता है, शॉर्ट टर्म मतलब 2-3 मंथ्स में भी डीलिंग हो जाती है। लेकिन इंटरनेशनल फैक्टर सॉरी फॉरफेटिंग में क्या होता है ना, फॉरफेटिंग में जो डेफर्ड पेमेंट्स होते हैं ना एक्सपोर्ट के, जो लॉन्ग टर्म, डेफर्ड मतलब लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म पेमेंट्स होते हैं ना एक्सपोर्ट के, उसमें भी डीलिंग होती है फॉरफेटिंग में। ओके समझ? अच्छा मैम। हाँ जी। अब देखो मैकेनिक्स ऑफ फॉरफेटिंग में कितनी पार्टीज हैं? एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर अपने सारे जो भी डीलिंग होगी वो किससे करेगा? फॉरफेटर से। ठीक है। अब एक इंपोर्टर होता है, इंपोर्टर की एक अवेलिंग बैंक होती है, अवेलिंग बैंक। अब फॉरफेटर किससे बात करेगा? इंपोर्टर से थोड़ी करेगा। फॉरफेटर अवेलिंग बैंक से डील करता है और अवेलिंग बैंक इंपोर्टर से सारी डिटेल्स लेती है। और फॉरफेटर ही होता है जो सारे बिल्स मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखता है, हेल्ड टिल मैच्योरिटी, सेल टू द ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। उसकी मर्जी है, वो आगे भी बेच सकते हैं। फॉरफेटर की मर्जी है, वो आगे भी बिल्स को बेच सकता है किसी और इन्वेस्टर्स को, या फिर उन बिल्स को सेकेंडरी मार्केट में डील कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वो उसकी मर्जी, वो बिल्स के साथ आगे वो बेच रहा है, क्या कर रहा है। हेल्ड टिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक रखना है उसको, रख सकता है या फिर आगे बेच सकता है। ठीक है, वो उसकी मर्जी है। मैकेनिज्म्स, ये देखो कितने पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें, 5 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, 5 पार्टीज। हाँ, फॉरफेटिंग में 5 और इंटरनेशनल फैक्टरिंग में 4 पार्टीज। याद है आपको इंटरनेशनल फैक्टरिंग? उसमें 4 पार्टीज थी, एक्सपोर्टर, यस एक्सपोर्टर्स, मैम। एक्सपोर्टर्स फैक्टर, फैक्टर इंपोर्टर, इंपोर्टर्स फैक्टर। लेकिन यहाँ पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? 5। देखो 5। कौन कौन सी है। देखो, एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर्स बैंक, फिर इंपोर्टर्स, नेक्स्ट इज इंपोर्टर्स बैंक, एंड लास्ट इज फॉरफेटर। एंड फॉरफेटर क्या करता है? एक्सपोर्टर बैंक और इंपोर्टर बैंक में बीच में एक लिंक होती है, उसे कहते हैं फॉरफेटर। फॉरफेटर इज द लिंक बिटवीन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स बैंक। ठीक है। अभी देखो ये थोड़ा डिटेल में मतलब स्टेप वाइज बताया है उन्होंने आपको, मैकेनिक्स को स्टेप वाइज बताया है डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। Exporter and importer negotiate the proposed export sales contract. सबसे पहले वो नेगोशिएट करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए, कितने गुड्स को ऑर्डर करना है, कितने गुड्स कितने रेट पर, कैसे किस हिसाब से ऑर्डर किए जाएंगे। ठीक है। दीज आर प्रिलिमिनरी डिस्कशंस, ये बेसिक डिस्कशंस है, प्रिलिमिनरी हैं, सबसे पहले होती हैं जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में होती हैं। अब based on these discussions, the exporter approaches the forfeiter. अभी एक्सपोर्टर सीधा इंपोर्टर को गुड्स नहीं बेचेगा, नहीं, पहले एक्सपोर्टर क्या करेगा? अप्रोच किसको करेगा? फॉरफेटर को। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों के बीच में डिसाइड हो जाएंगे। किन के बीच में? एक्सपोर्टर एंड फॉरफेटर। अब फॉरफेटर कलेक्ट करेगा फ्रॉम एक्सपोर्टर ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स अबाउट इंपोर्टर, सब, मतलब एक्सपोर्टर से फॉरफेटर सारी डिटेल्स कलेक्ट करेगा, मतलब आप किसको इंपोर्ट करने वाले हो, कौन सी कंपनी है, कितना सप्लाई करने वाले हैं, क्रेडिट टर्म्स मतलब कितना क्रेडिट पीरियड देने वाले हैं, 3 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, और इंस्टॉलमेंट्स है तो कितने सालों तक इंस्टॉलमेंट चलेगी या कितने मंथ्स तक इंस्टॉलमेंट चलेगी। ऐसा भी क्रेडिट टर्म्स में लिखा होता है कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स है और कितने टाइम तक इंस्टॉलमेंट्स चलेगी, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म होता है, फॉरफेटिंग है ना, लॉन्ग टर्म होता है। और डॉक्यूमेंटेशन मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर से कलेक्ट करने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन फॉरफेटर कलेक्ट करता है एक्सपोर्टर से। ठीक है, जैसे उसको पता चल सके, इन ऑर्डर टू एसर्टेन द कंट्री रिस्क, मतलब कौन सी कंट्री के कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हो, यूएस का तो रिस्क कम है, यूरोप का रिस्क कम है, मतलब कंट्री कंट्री पे डिपेंड करता है ना। अभी आप पाकिस्तान के साथ डील करोगे तो रिस्क ज्यादा है ना, है ना।
कंट्री का रिस्क ज्यादा होता है, वहां पे तो रिस्क है एक्सपोर्ट करना। अभी आपको पता है वो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कंट्री के रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क मतलब कितना बैड डेट्स होने का चांसेस है, उसे कहते हैं क्रेडिट रिस्क, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट मतलब, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, मतलब पेमेंट ना करना, डिफॉल्ट हो गया। हम बोलते हैं ना ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में नाम आया है, डिफॉल्ट लिस्ट में नाम आया है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, तो आपका मिनिमम अटेंडेंस से भी कम है, उसे कहते हैं डिफॉल्ट लिस्ट। तो डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है, बैड डेट्स, उसे क्रेडिट रिस्क भी बोला जाता है। तो कंट्री रिस्क, क्रेडिट रिस्क पता चल सके ट्रांजैक्शंस का, इसलिए फॉरफिटर सारी इंफॉर्मेशन एक्सपोर्टर से कलेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ दिस रिस्क, अब पता चल गया कितना रिस्क है, ज्यादा रिस्क है तो डिस्काउंट रेट भी ज्यादा होगा, और अगर रिस्क कम है तो डिस्काउंट भी आपका कम कटेगा। मतलब फॉरफिटर कोट करता है आपको डिस्काउंट रेट, कि कितना डिस्काउंट रेट होगा, डिपेंडिंग, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क दैट इज अटैच्ड टू द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। आ रहा है समझ में? स्टेप्स पढ़ रहे हैं हम, Yes, मैकेनिज्म के ma'am. स्टेप्स, मतलब प्रोसेस के स्टेप्स पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका, एक्सपोर्टर हैज नाउ टू टेक केयर दैट डिस्काउंट रेट इज रीजनेबल। इतना ज्यादा भी डिस्काउंट ना कटना चाहिए ना एक्सपोर्टर का कि नुकसान हो जाए, ठीक है, तो वो रीजनेबल होना चाहिए, ज्यादा डिस्काउंट भी ना हो, ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए, एंड वुड बी एक्सेप्टेबल टू हिज बायर, और बायर को एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। ही विल देन कोट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अब वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कोट करेगा टू द ओवरसीज बायर। अब ये सारी चीजें एक्सपोर्टर ने देख ली कि कितना डिस्काउंट मेरा कट रहा है, ठीक है, और कितना बायर एक्सेप्ट कर सकता है। अब ये सारा चीजें हो गया, डिसाइड हो गया मेरा कितना डिस्काउंट कट रहा है, मतलब इतना तो मेरा डिस्काउंट कटेगा, तो इतना मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड करनी है ना। आप मेरे इम्पोर्टर हैं तो आपको मैं तब तो प्राइस कोट करके बताऊंगी जब मुझे पता चलेगा कि मैंने ये सारे अगर बिल्स बेचे फॉरफिटर के पास और फॉरफिटर ने डिस्काउंट काटा, तो मेरे हाथ में कितना बच रहा है, वो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताऊंगी कि मैंने आपको इतने में गुड्स बेचने हैं। He will then quote a contract price to the overseas buyer by loading the discount rate, commitment fees, etc. मतलब ये सारा कुछ आपने अकाउंटिंग में ले लिया, लोडिंग कर लिया, मतलब अकाउंटिंग में ले लिया कि इतना मेरा डिस्काउंट रेट कटेगा, कमिटमेंट फीस कटेगा, जो मुझे फॉरफिटर को फीस भरनी है, ठीक है, बाकी के भी जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो सब काट साट के मेरे पास इतना हाथ में बचेगा, जो कि इतना तो होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट हो, तो उसी को ही तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ठीक है। इफ द डील गोज थ्रू, अगर ये इंपोर्टर एक्सेप्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, एंड इफ द डील गोज थ्रू, डील्स गो थ्रू, द एक्सपोर्टर एंड फॉरफिटर साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अगर इंपोर्टर ने बोल दिया कि हाँ मुझे इतना पेमेंट चलेगा, तो ये दोनों साइन करते हैं। साइन करने के बाद क्या होता है, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट टेक प्लेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स गारंटीड बाय द इंपोर्टर्स बैंक। अब क्या होता है, इंपोर्टर की बैंक ने सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो गारंटी दी थी, आपको पता होगा जब भी लेटर ऑफ क्रेडिट, पता है ना क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जब इंपोर्टर खरीद रहा है गुड्स एक्सपोर्टर से, तो एक्सपोर्टर क्या मांगता है उससे, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि अगर बाय चांस आपने पेमेंट नहीं किया तो इंपोर्टर कहता है डोंट वरी, मेरी बैंक है ना वो आपको पेमेंट कर देगी, उसने मुझे गारंटी दी है। मतलब बैंक गारंटर बन के खड़ा रहता है कि अगर मेरे कस्टमर ने, मतलब इंपोर्टर ने, अगर आपको पेमेंट नहीं की टाइम पे, तो मैं हूँ, इंपोर्टर की बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है, उसी को ही तो कहते हैं गारंटी गिवन बाय इंपोर्टर्स बैंक। जब तक लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मिलता है, लेटर ऑफ क्रेडिट का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है ना कि उसके बिना एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता, उसके बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता, लेटर ऑफ क्रेडिट तो चाहिए ही चाहिए।
तो एक्सपोर्ट तब कर सकते हैं आप, एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट्स गारंटीड बाय इंपोर्टर्स बैंक। इंपोर्टर बैंक जब गारंटी देगी तब भी हो सकता है एक्सपोर्ट। और ये कौन करवाता है? फॉरफिटर। फॉरफिटर ही तो है जो इंपोर्टर की बैंक को अप्रोच करेगा कि आप जब तक लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं देंगे तब तक हम एक्सपोर्टर, मतलब हम लोग इंपोर्ट नहीं, सॉरी, हम इंपोर्टर को कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया सबको? इतना क्लियर है? सो इफ यहाँ पे जिस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है वो लेटर ऑफ क्रेडिट की बात हो रही है, जब बैंक गारंटी देती है। किसकी बैंक गारंटी दे रही है? इंपोर्टर की। कॉमन सेंस से वहीं से तो गारंटी चाहिए कि ये टाइम पे पेमेंट देगा कि नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो इंपोर्टर की बैंक बैठी है ना, गारंटी तो मुझे इंपोर्टर की चाहिए।